हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास कुमार क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई वाइट बोर्ड नहीं है, मेरे हाथ में आज कोई मार्कर नहीं है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना है वो टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु हैव रिसेंटली पास देयर 10th स्टैंडर्ड एंड दे आर गोइंग टू परस्यू देयर 11th स्टैंडर्ड बेसिकली. From the last few days, I used to receive few calls from the students who have recently passed their 10th standard कि भैया which stream should I choose. So मैं arts लूँ, commerce लूँ, science लूँ. Guys, this is something no one can tell you. Okay, and even me, I can tell you you should choose arts, commerce or science, right? I can give you a path. Okay, on the basis of that path or on basis of that method, you can choose your career basically. Guys, basically this is not a stream only, this is your career. On these stream your career basically depends, guys. So today I am here with that method, so please listen carefully and apply this method before choosing this stream. Okay guys, so that you make sure that your future should be bright. Okay, so the method is, first is identify your interest. Okay, once you guys identified your interest, along with the identified interest you need to discover your interest, guys. Okay, once you identified your interest, you have discovered your strength, and then you need to see the future prospectus basically, right? After the future prospectus you need a career counseling. Okay, once you are done with the career counseling, now you have to see the budget basically, right? Whatever you want to become in your life, because budget is the most important factor what you want to become in your life. Okay guys, so there are 5 things. The first is identify your interest, the second discover your strength, the third is future prospectus, fourth is career counseling, and fifth is guys budget. Okay, so these 5 things are very important things. Let's discuss all these 5 things one by one, guys. So while I am saying, the first of all, identify your interest. So this is something you need to check, you need to identify in which subject you love most while you are studying, guys. Okay, either it could be possibility that you love, or you guys are enjoying, you are crazy for the calculations part, mathematicals area, or it could be possibility you always curious to know about your historical things of your country, of the world. Okay, or it could be possibility that you guys are enjoying to know about the scientific method, about the chemical reactions, about the body part, about the body reactions. Okay, all the scientific research. So guys, you need to clarify your interest, you need to check your interest. If you are if you are curious to know about your historical things, you guys can go with the humanity. If you are enjoying the crazy calculations, you can go with the commerce stream. If you are love to know about the chemical reaction or the physics, chemistry, biology, so guys can go with the science stream, guys. Okay, but along with identify your interest, you have to check your strength basically, guys. Strength is most important factor here, most important factor. While I'm saying most important factor, is really a very and very most important factor, because guys, see, I love to drive a Mercedes, but this is my lovable area, this is my interest area, this is not my strength. If my strength is Honda City, I must go with the Honda City, guys, not with Mercedes. See, if you have an interest in commerce stream, but your strength in history, your strength in geography, please guys, you must continue with the humanity. If your strength is mathematical calculation area, you are not a good guy in commerce stream and biology, you should not go with the science stream, guys. You must, or you should continue with the commerce stream, guys. So along with the identify your interest, you must check your your strength basically. Might be possibility you love mathematical part, right? You're crazy for the calculations area, but you have pretty well scored in the social science or science.
It could be possible that, or it could be possibility that, guys, you love the science, you love the biology, physics, chemistry, but you pretty well scored in mathematics. So guys, along with the identify your interest, you need to check with your strength part. Okay, don't choose anything based upon your interest only. Please consider your strength with interest. Okay, so interest plus strength is power. Only interest, it is nothing, guys. Trust me, I told you, if I love to drive a Mercedes, this is my only lovable area, this is my only interest, this is my target. Okay, I want that, in my life, once day will come, then I will drive the Mercedes. But for now, my strength is Honda City. I must go with the Honda City, guys. Okay, once you are done with your interest part, your strength part, you need a future prospectus. You need to see the future things. एक बार आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है, अपना स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लिया गाइस, नाउ इट्स अ टाइम टू सी द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बेसिकली. ओके, एंड नेक्स्ट 2 पॉइंट को हम एक साथ समझेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एंड करियर काउंसलिंग गाइस. These 2 points are very important, and here you need a someone to discuss with you. Okay, you need a guy who can discuss about your strength part, about your weakness part, about your interest part basically. Okay, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ आपके वीकनेस के ऊपर डिस्कस करके आपके डिसीजंस को लेने के लिए मजबूर कर देते हैं गाइस, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. वो सिर्फ और सिर्फ नो में बात कर रहे होते हैं, वो यस में बातें नहीं कर रहे होते गाइस. आपको एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि आपके वीकनेस के साथ साथ आपके स्ट्रेंथ को भी देखे, तभी वो आपको एक सही डिसीजन दे पाएगा दोस्तों. ट्रस्ट मी, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप डिस्कशन ना करें जो सिर्फ और सिर्फ आपके वीकनेसेस एरिया को देख रहा है. बेटा, आप उनके साथ डिस्कस करें जो कि आपके वीकनेस एरिया के साथ साथ आपके स्ट्रेंथ को भी देखे, आपके स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करें, एंड बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन योर हैबिट्स, बेस्ड ऑन योर वीकनेस, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करने के बाद आपको काउंसलिंग करेगा. क्योंकि गलत काउंसलिंग, सी आई एम ऑलवेज सेइंग दैट ऑलवेज बेटर डोंट रन इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन अ रॉन्ग पाथ. राइट, आप दोस्तों आप उस रूट पे ड्राइव कर रहे हो जहां आपको जाना ही नहीं है. इससे बढ़िया है कि आप ड्राइव ना करें, आप वहीं ठहरें, वेट करें किसी व्यक्ति के आने का, वेट करें कि आपको कोई रास्ता मिले और कोई सही रास्ता मिले या कोई आपको सही रास्ता बताए. गलत रास्ते पे चलने से अच्छा होता है दोस्तों ना चलना. राइट, तो आपको जब आप काउंसलिंग ले रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि काउंसलिंग आप किसके साथ ले रहे हैं. राइट, आप जिस भी फील्ड के लिए काउंसलिंग ले रहे हैं, प्लीज कंसीडर करना कि दैट गाय शुड बी अ जेन्युइन गाय गाइज. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड 4 पॉइंट्स, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, योर स्ट्रेंथ, योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव and career counseling. Now the last thing is your budget part basically. Okay guys, what is budget? Budget is most important factor. Budget is most important factor guys. And why I am saying only budget? So budget is not only related to the finance, it's related to the time also guys. So for this part, for only this point, you need to sit with your parents to discuss with them that I want to do this thing. Okay, this thing, it will take this much time, it will require this much budget. Okay, so budget is most important financial factor guys. राइट, आप जो भी कर रहे हैं, आपको जो फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए कॉमर्स लेते हैं गाइस, ठीक है, आप आफ्टर 12 सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, सीपीए करना चाहते हैं, सीएफए करना चाहते हैं, एसीसीए करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं गाइस, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, उनको इस कोर्सेज के बजट के बारे में बताएं कि ये इस कोर्सेज में, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर पोटेंशियली एबल होते हैं लोग, उनके अंदर एबिलिटी होती है, पोटेंशियल होते हैं वो लोग, ठीक है ना, पर फाइनेंशियल फैक्टर जो है उसके कारण बेटा वो उस चीज को परस्यू नहीं कर पाते.
राइट उनके पेरेंट्स जो है वो चीज़ को नहीं करवा पाते हैं। तो बेटर क्या पहले डिस्कस करें पेरेंट्स के साथ कि इस कोर्स को करने के लिए, इस चीज़ को मुझे करने के लिए मुझे इतने टाइम की आवश्यकता होगी, इतने बजट की आवश्यकता होगी। इफ़ योर पेरेंट्स विल अलाउड टू यू, प्लीज गो विद दैट। ओके, सो गाइज हमने 5 चीज़ों को कंसिडर करा था। होप कि ये 5 चीज़ें आपको क्लियर होगा। आप 11th में अपने स्ट्रीम को चूज करने से पहले इन 5 चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे इसके बारे में। द फर्स्ट वॉज आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। आप सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर नहीं जाएंगे गाइस। अलॉन्ग विद योर इंटरेस्ट पार्ट यू नीड टू सी योर स्ट्रेंथ एज वेल, राइट। इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेंथ, इन दोनों ही चीज़ों को आप देखेंगे दोस्तों, राइट। एक बार इंटरेस्ट आपने अपना आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपना स्ट्रेंथ देख लिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं करियर काउंसलिंग क्यों कह रहा हूँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स है दोस्तों। शायद कुछ लोगों को लग सकता है 11th लेवल पे चीज़ों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल होती है। 10th में आपको पता होना चाहिए, आप जब आप 10th पास कर रहे हैं, आप जब 11th में जा रहे हैं, आप 11th परस्यू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपको लाइफ में क्या बनना है। आपका फ्यूचर क्लियर होना चाहिए आपके सामने, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, आपके पास उस टारगेट के लिए प्लानिंग होना चाहिए। और आज जब जो भी चीज करें उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए करें दोस्तों, राइट। विदाउट प्लानिंग वट एवर यू आर डूइंग दैट इज नथिंग, दैट इज जीरो। एनीथिंग माइनस प्लान इज इक्वल टू जीरो। बेटा आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर विदाउट प्लानिंग कर रहे हैं बेटा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ट्रस्ट मी, कोई उससे अच्छा ना करो, आप ना करो बेटा, ठीक है ना। ट्रस्ट मी, मार्क माई दीज वर्ड बेटा, एनीथिंग माइनस प्लान इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। आप जो भी करें उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, इफेक्टिव प्लान होना चाहिए। सिर्फ प्लान नहीं, हम सोचते हैं हम कल से ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे और बेटा वो फिर चीजें वहीं रह जाती है। नहीं, इफेक्टिव प्लान होना चाहिए, ऑरल प्लान नहीं होना चाहिए, रिटन प्लान होना चाहिए दोस्तों। तो करियर काउंसलिंग इसलिए जरूरी है, आप 11th में आपने स्ट्रीम ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स ले लिया दोस्तों, आगे आपको पता ही नहीं है कॉमर्स स्ट्रीम से हम क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या करियर पाथ हमारे पास अवेलेबल है। अब 12th पास होता है आपको पता ही नहीं होता। अब दोस्तों के बेस भीड़ चाल चल लेते हैं बेटा, जब आप 1 साल 2 साल 3 साल निकाल चुके होते हैं अपने टाइम, आपको तब पता चलता है अरे अगर मैं ये करता तो मैं बेटर तरीके से कर सकता था। बेटा वो ये करता वो करता, ये जो आपको उस टाइम पछतावा हो रहा है ये आपको नहीं होगा अगर आपका 11th में अगर आपका पाथ अगर क्लियर हो जाए कि मुझे मेरा रास्ता क्या है, राइट। आप जब कहीं भी जाते हैं, जब ड्राइव करते हैं दोस्तों, गाड़ी में बैठते ही हम मैप को बेटा एग्जीक्यूट करना चालू कर देते हैं। ये नहीं कि हम जब पहुंचेंगे तब हम मैप देखेंगे, राइट। हम जैसे ही अपने कार को स्टार्ट करते हैं, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं बेटा, हम अपने मैप को देखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो 11th जो है वो आपके लिए एक ड्राइविंग पोजीशन है दोस्तों, आपने वहां से अपने लाइफ को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो आपको यहां से आज आपका मैप स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है दोस्तों 11th में ही, 11th स्टैंडर्ड में। और ध्यान दें कि गलत करियर काउंसलिंग से अच्छा है बेटा नहीं करना। मैं हमेशा कह रहा हूं, कोई भी चीज को गलत तरीके से करने से अच्छा होता है दोस्तों नहीं करना। करियर काउंसलिंग जब आप करें, आपको देखना होगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल पर्सन है। इतना नेगेटिव तो नहीं है बेटा वो कि वो सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहा है कि अरे नहीं सीए नहीं बन पाते दोस्त, इतना टाइम लग जाता है, आंखें चली जाती है, बाल उड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाते हैं। बेटा ऐसे लोगों के साथ प्लीज अवॉइड करें अपनी लाइफ को। ऐसे लोग आपको कुछ नहीं बनने दे पाएंगे बेटा, आपके हर पाथ को रोकेंगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी बेटा नेगेटिव होते हैं, वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर बेटा कि वो अपने बच्चों से दिन रात ये कहने लगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बेटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीजें आपके सामने जितनी बार ज्यादा आएंगी आप उसी के अकॉर्डिंग आप बेटा चलना चालू कर दोगे, आप वही बन जाओगे दोस्तों। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। द सिंपल फंडा इज थिंग, राइट। अगर आपके दिमाग में यही डाल दिया जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ट्रस्ट में कुछ नहीं कर सकते, ट्रस्ट में गाइड। और मुझे ऐसे लोगों से बहुत गुस्सा आता है जो इतना नेगेटिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने नेबर्स को लेकर, अपने रिलेटिव्स को लेकर। नहीं, हर बच्चा कुछ कर सकता है। अगर आपसे अच्छा नहीं हो रहा है प्लीज किसी को गलत गाइड ना करें। आप सिर्फ उसके नेगेटिव चीजों के बारे में ना बताएं उसके हाँ आप बता सकते हैं कि नहीं बेटा ये चीज आपसे नहीं हो सकती, पर उसके साथ आप ये भी बताएं कि आप ये चीज कर सकते हो,
राइट। आप सिर्फ ये ना बताएं कि ये चीज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फिर वो कौन बताएगा जो कर सकते हैं। क्योंकि और गाइस जो करेक्ट करियर काउंसलिंग है वो बहुत जरूरी है। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी गाइस, श्री कृष्ण जो है वो एक काउंसलर का ही काम कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक, अगर वो सही काउंसलिंग के कारण ही महाभारत जीती गई है दोस्तों। महाभारत बड़े बड़े योद्धाओं के कारण, जो योद्धा हारे थे वो बेटा कम नहीं थे, वो किसी से कम नहीं थे, बड़े बड़े वीर थे, लेकिन वो हारे। क्यों हारे? उनके पास गलत करियर काउंसलिंग थी। मामा शकुनी जैसे करियर काउंसलर थे बेटा उनके पास, और यहाँ श्री कृष्ण जैसे करियर काउंसलर थे। आपको देखना होगा आपका करियर काउंसलर कौन है। मामा शकुनी तो नहीं है। मामा शकुनी जैसे लोगों से दोस्तों आपको दूर रहना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत खुल के कहता हूं कि कुछ लोगों के पेरेंट्स भी ये काम करते हैं दोस्तों। कुछ व्यक्ति के जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद अपने बच्चों को लेकर इतना नेगेटिव है। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि आपने इस बच्चे को जन्म दिया है, अगर आप ही इस बच्चे को लेकर इतना नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर आपके अलावा कौन इनको काउंसलर करेगा, राइट। तो प्लीज अपने बच्चों में फेथ रखें, राइट। ये वही घड़ा है, ये वही बर्तन है जिसको शेप आपने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, राइट। आप अपने शेप पे तो विश्वास रखें ना, ये आपकी ही मेहनत है, ट्रस्ट मी। तो अपने बच्चों पर विश्वास रखें, आपका बच्चा जरूर कुछ कर सकता है, ठीक है। मामा शकुनी ना बने, आप श्री कृष्ण बने। ओके गाइस, इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, गाइस प्लीज कॉल मी एनी टाइम, ओके। पर मैं हमेशा कहूंगा भेड़ चाल नहीं चलना दोस्तों। दोस्तों को देख के, रिलेटिव्स के प्रेशर में आके, कुछ बच्चों का मैं बड़ा ही अजीब और गरीब ओवरव्यू देखता हूं कि भैया जिसमें ज्यादा पैसा होगा हम वो करेंगे। पैसा हम कहाँ ज्यादा कमा सकते हैं। बहुत मूर्ख होते हैं बेटा ऐसे लोग, बहुत मूर्ख होते हैं दोस्तों। गाइस ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जहां पैसा नहीं दोस्त, ट्रस्ट मी। अगर आपके पास चाय बनाने की भी एबिलिटी है ना दोस्तों, आप जाएं और सर्च करें कि चाय वाला क्या कर सकता है इस कंट्री में बेटा, ठीक है। तो दोस्तों आप अपनी एबिलिटी को छुपाएं ना, गलत डायरेक्शन में ना जाएं। अपने जो दोस्त हैं, अपने जो काउंसलर हैं, श्री कृष्ण जैसे बनाएं। मेक श्योर कि मामा शकुनी जैसे ना हो दोस्तों। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।